The one thing is very important to discuss, which is absolute values. What is absolute value? Absolute value of the number is its distance from 0 on the number line. Since we cannot have negative distance, absolute values are always positive. इसको हम लोग मॉड भी कहते हैं, मॉडुलस भी कहते हैं. जैसे कि मॉडुलस ऑफ 5 इक्वल्स 5. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉडुलस? मॉडुलस का मतलब ये हुआ कि सपोज करो कि आपके पास कोई क्वांटिटी है जो कि -1 है. तो -1 का मतलब ये हुआ कि 0 से जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो इनिशियल पॉइंट है, जो को इनिशियल पॉइंट है, जो हम लोग का पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, स्टार्टिंग पॉइंट, तो जो सेंटर है 0, तो 0 से -1 का मतलब ये होगा कि नेगेटिव साइड से हम लोग 1 यूनिट डिस्टेंस कवर कर रहे हैं. और अगर वो 1 यूनिट पॉजिटिव साइड से भी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो दोनों का जो वैल्यू होगा वो बिल्कुल सेम होगा, जो कि 1 होगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि मॉडुलस अपने अंदर दोनों ही वैल्यूज कंटेन करती है, निगेटिव भी और पॉजिटिव भी, लेकिन जो आउटकम होगा वो ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा. फॉर एग्जांपल कि मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू +-x, अगर वो x नेगेटिव है तो उसका मतलब वो -x होगा. मीनिंग इफ x इज लेस देन 0 देन मॉड ऑफ x इज इक्वल टू -x. तो -x की वजह से जो नेगेटिव थिंग है वो माइनस से मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएगा. और अगर वो पॉजिटिव है तो द मॉड ऑफ x, इफ x इज ग्रेटर देन 0 देन रिजल्ट विल बी पॉजिटिव x. तो एज इट इज सेम रहेगा. जैसे फॉर एग्जांपल मॉड ऑफ 5 इज इक्वल टू 5, मॉड ऑफ -7 इज इक्वल टू माइनस ऑफ -7, तो माइनस ऑफ -7 इज इक्वल टू 7. से मॉड ऑफ -8 + 2, तो -8 + 2 इज इक्वल टू -6. देन मॉड ऑफ -6 is equal to minus of -6, because -6 is less than 0, then result will be minus of -6 equals +6. तो ये देख सकते हैं कि when solving absolute value equations we must consider that the number inside could have been negative before you applied the absolute value. For example, the same is the thing is here, x + 2 modulus is equal to 3. Then we have to solve for x + 2 positive and x + 2 negative. For both the cases, if x + 2 is equal to 3 and if x + 2 is equal to -3. So when we take the absolute value, both the equals to 3, so we end up with two solutions for this equation. Now if x + 2 is equal to 3, then x + 2 equal to 3, then -1 equals -1. And if x + 2 is equal to -3, then -2 -2, meaning x equal to -5 and x equal to 1. So here there are two values of x. The first is x is equal to 1 and the second is x equal to -5. So now if we put the value of x1 into equation, then 1 + 2 equals to 3. And if we put value x equal to -5, then -5 + 2 is equal to -3 and the result will be 3. So -1 and -5, sorry, +1 and -5 are both the solutions for x. Now you can solve mod of 3x - 4 is equal to 5. So you have to take two values, one negative and second positive, means 3x - 4 is equal to -5 and 3x - 4 is equal to +5. And now by satisfying the values of x, you can find out the solution. You should get x equal to -1/3 and x equal to 3. It must be both the solution. So you can solve this. Now in linear equation, if we plot all the solutions to linear equation on a graph, they form a line. That is why they are called linear equations. Linear equations can be written in slope intercept form, जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था. स्लोप के फॉर्म में इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, like y equal to mx + b or mx + c, where b is the intercept, m is the slope, and x and y are two variables on the two-dimensional axis for x and y. So there are two important things to know when writing the equations of a line in slope intercept form, the slope and y-intercept. The slope of a line gives rate of change. Remember, slope is rise over the run. That is because from any point on the line, the direction to another point on the line is given in terms of x and y coordinates. हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना कि x और y ये दो जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जिसमें x एब्सिसा है और y जो है वो ऑर्डिनेट है. तो हम लोग इन दोनों
जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हम लोग के पास है एक्स और वाई में, वहाँ पे हम लोग एक्स और वाई की वैल्यूज़ को पुट करके और जो डायग्राम है, जो स्ट्रेट लाइन है, वो हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। अच्छा, ये कितना राइज कर रहा है, कितना ये लो हो रहा है, कितना अप हो रहा है, कितना डाउन हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा हम लोग को? तो ये हम लोग को स्लोप से पता चलेगा। तो जैसे से इसका स्लोप जो है, यानी कि जो एम की वैल्यू है वो पॉजिटिवली इंक्रीज करती जाएगी, वैसे वैसे हम लोग का जो ये स्ट्रेट लाइन है ना, वो अप होता जाएगा। जैसे स्लोप कम होता जाएगा तो वो डाउन होता चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ द स्लोप इज 2/3 फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ योर लाइन to get to another point on the line, we would move positive up to 2 and positive to the right up to 3. So y-intercept is the point where the line crosses the y-axis. ये सिंपल है कि अगर हम लोग इस इक्वेशन में, यानी कि y = mx + b में अगर हम लोग x को 0 करते हैं तो हम लोग को वहाँ से y इंटरसेप्ट मिलता है। अगर y को 0 कर लेते हैं तो वहाँ से हम लोग को x इंटरसेप्ट मिल जाता है। यानी कि अगर y को, चूँकि हम लोग को पता है कि एक्सिस में x एक्सिस का जो y इंटरसेप्ट होता है वो 0 होता है और y एक्सिस का जो x इंटरसेप्ट होता है वो 0 होता है, तो वहाँ से हम लोग उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी ये इंपॉर्टेंट है देखना कि 3x - 2y = 4, सो -3x एंड -3x। तो अगर यहाँ पे इसको हम लोग y = mx + b के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करें तो y = mx - 2 और m की वैल्यू यहाँ पे 3/2 आ जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हम लोग का स्लोप है वो 3/2 है और जो हम लोग का x 0 पुट करने पे जो y इंटरसेप्ट आता है वो हम लोग का -2 आता है। यानी कि y इंटरसेप्ट जो है वो -2 पे मिल रहा है हम लोगों को। यानी कि जो ये स्ट्रेट लाइन है, ये x को अगर 0 पुट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि y एक्सिस पे ये -2 जो पॉइंट है उस पॉइंट से ये क्रॉस करेगा। तो अब आपके लिए क्वेश्चन है कि फाइंड द स्लोप एंड y इंटरसेप्ट ऑफ द लीनियर इक्वेशन x - 3y = -6। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको ट्रांसफॉर्म करके हम लोग y = mx + b के फॉर्म में, जैसा कि x - 3y = -6 है। तो अगर हम लोग -3y को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं तो 3y = x + 6 हो जाता है और y की वैल्यू जो मिलती है हम लोग को, तो वहाँ से हम लोग m और b डिसाइड कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि m जो है वो मिल रहा है हम लोग को 1/3 और जो b है वो = 2 मिल रहा है बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x = 0। सेम यहाँ पे राइटिंग द इक्वेशंस ऑफ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब एक एग्जांपल ट्राई कर सकते हैं हम लोग कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट हैज स्लोप ऑफ -2/3 एंड द पॉइंट 9 and 2। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये स्ट्रेट लाइन है वो 9 और 2 से क्रॉस कर रहा है और उसका स्लोप -2/3 है। तो इसको ऐसे कर सकते हैं हम लोग कि अगर y, चूंकि 9 और 2 से क्रॉस कर रहा है तो इसका एब्सिसा 9 है, ऑर्डिनेट 2 है, यानी x की वैल्यू 9 है, y की वैल्यू 2 है। यानी एक ऐसा पॉइंट है जो 9 और 2 से क्रॉस हो रहा है। तो y की वैल्यू अगर हम लोग 2 पुट कर दें y = mx + b में, और m की वैल्यू हम लोग को पता है -2/3 है और सेम x की वैल्यू 9 है और प्लस b, तो यहाँ से हम लोग को b मिल जाता है जो कि 8 है। यानी कि y = mx + b में हम लोग b को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ स्लोप एंड द 2 पॉइंट्स वेयर द स्ट्रेट लाइन इज पासिंग थ्रू। तो यहाँ